So, we will discuss next section of the topic quantum mechanics, but before that briefly we will discuss the basic idea how the quantum mechanics emerged. All of us very well know aware that radiation has dual nature. Okay. Radiation behave like a wave as well as particle, and that for this conceptual development, understanding the development of quantum mechanics, you have to, if you are interested, you can go through some of the basic experiments. And one experiment was photoelectric effect that was developed, observed in I think 1905 somewhere, photoelectric effect. And before that, black body radiation. When we explained the radiation emerging from the black body radiation, and then photoelectric effect, and then one more is the Compton effect. Compton effect, we allow radiation to fall on a material, and the results that we obtained, that we can explain based on particle nature of radiation, whether it is a black body radiation or it is a photoelectric effect or it is a Compton effect. These three experiments you can say, or these three phenomena hai, where to explain the outcomes of these experiments, we have to consider as if radiation is behaving like particles. Photoelectric effect के लिए भी वैसे ही है. Okay. So, there we consider that radiation behave like a particle, and the particle associated with the waves, particle associated with the radiation is we call photon. जो photon we use the term photon, basically that is the associated particle with the radiation. Any type of wave we say the photon. Photon is actually the kind of particle associated with the waves. So, this was one observation that radiation was found to have dual nature, and we see that energy in the universe transported in two ways, either it is in form of waves or it is through the materials. Energy exists either in waveforms, waves, या फिर in form of material. If you have some material, it has associated energy. Okay. So, energy exists or energy transported from one place to another place, either in form of waves or in form of particle. So, wave and particle considered to be having similar behavior. Okay. अगर हम कहते हैं कि radiation behave like a dual nature, then particle matter should also have dual nature. Okay. So, based on this idea that energy transported equally by matter as well as the waves, so the behavior wave have the similar behavior particle should have. Particle का भी behavior फिर वैसा ही होना चाहिए, and based on that de Broglie gave a hypothesis, what we known as de Broglie hypothesis, where de Broglie said that every matter, every material particle behave like a wave also, and he gave a formula that wavelength associated with any particle is h upon p. Okay. And that formula was derived from the simple logics that we know according to Einstein theory, E equal to mc square. E equal to mc square. Any mass m have associated energy with it, and that mc square is the energy associated with mass m. So, this is the energy associated with matter. Matter of mass m will have energy mc square, and if you have any wave will have energy E equal to h nu.
अगर कोई वेव है तो उसकी एनर्जी एच न्यू होगी, विच वी कॉल एच सी बाई लेमडा. न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव. एंड सिंस एनर्जी टर्म इज सेम है, सो वी से एम सी स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू एच न्यू. अगर आपका रेडिएशन ड्यूल बिहेवियर एग्जिबिट करता है, इफ रेडिएशन हैव ड्यूल नेचर, then this is the energy associated with the matter, this is the energy associated with the radiation waves. So ये दोनों energies बराबर होनी चाहिए. Okay, so equating this we get mc into c equal to h nu. mc mass into velocity, mass of the matter into velocity, c velocity, and actually it is for रेडिएशन के लिए है ये नेचर. अभी तक ये नेचर किसके लिए है? रेडिएशन के लिए है. सो रेडिएशन वेलोसिटी नॉर्मली इज c, वेलोसिटी ऑफ द रेडिएशन इज c, एंड m इज द मास ऑफ द पार्टिकल फोटोन एसोसिएटेड विद द रेडिएशन. ओके, सो इट इज बेसिकली मोमेंटम. mc मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम, c इक्वल टू h न्यू. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट p इक्वल टू h न्यू बाई c. ओके, and h nu by c we can call h upon lambda. Okay, we can write c equal to nu lambda. So once you write nu, so it will be cancelled. So h by lambda, so p equal to h by lambda is the relation which relates particle property momentum to the wave property wavelength, है ना. तो ये जो रिलेशन है ये पार्टिकल प्रॉपर्टीज को वेव प्रॉपर्टी से रिलेट करता है. ओके, एंड देन वी कैन राइट h इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन p. सो बेस्ड ऑन दिस सो फार इट इज फॉर रेडिएशन, है ना. सो फार दिस रिलेशन इज फॉर द रेडिएशन, बट नाउ व्हेन वी से सेम रिलेशन होल्ड फॉर मैटर एज वेल, दैट every material particle should have associated wave nature. Okay, so what will be the wavelength of the material, wavelength of the wave associated with the material particle? So wavelength is h upon p. P is the momentum of the particle. So if you have any particle of mass m, it is moving with velocity v, its momentum will be mv. Then for the particle relation lambda will be h upon mv. This is what de Broglie said for matter and derived from the same, because ये जो relation है ये it is for radiation. Radiation के लिए है ये nature relation where lambda and p are related. Material parameters, material property related to wavelength properties, right. So based on same idea, de Broglie said that we have mass of particle, material mass m moving with velocity v, p will be mv, so associated wavelength will be h upon mv. Now if you take electron and you accelerate it through potential of v volt, है ना. अगर आप इलेक्ट्रॉन को v वोल्ट पोटेंशियल से एक्सेलेरेट करते हैं, देन इलेक्ट्रॉन विल एक्वायर एनर्जी हाफ mv स्क्वायर. ओके, ड्यू टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड this way. Okay, and you have applied potential v, positive plate, negative plate, and you have electron here. So electron will move this way toward force. So once electron experience force due to electric field, okay, it will start moving, it will attain some velocity. So half mv square should be equal to ev, because ev is the energy that particle electron will acquire when it is accelerated through potential v. अगर इलेक्ट्रॉन या q चार्ज को v पोटेंशियल से एक्सेलेरेट करें तो एनर्जी एक्वायर्ड हो जाएगी ev. So this energy is equivalent to kinetic energy. So kinetic energy half mv square. So mv will be mv square will be
we can write it twice EV. Okay, so m square V square is equal to twice m EV and P. Okay, so mv equal to twice m EV under root. So P equal to twice m EV under root. Okay. So if you are accelerating electron through potential V, then what will be the associated wavelength? Okay, in that case associated wavelength हो जाएगा h upon twice m E V, है ना. So if we accelerate electron through potential V, then electron will move like a wave, and wavelength of the electron will be this. And if you calculate it, it will be lambda 6.625 into 10 to the power minus 34 and twice 9 into 10 to the power minus 31 into 1.6 into 10 to the power minus 19, okay, into V, okay, and this you will get 12.26 into 10 to the power minus 10 upon root V. V unknown रखा हमने. So if you calculate these values, you will get this much lambda meter, because lambda wavelength distance होगा, so ये unit distance में आएगा, and it will be 12.26 angstroms upon V, where V is in volt. V को आपने वोल्ट में रखना है. And if V is 54 volt, V को हम 54 volt के अराउंड रखें, then lambda will be 1.66 angstroms, है ना. This is how we can get wavelength associated with the moving charge. So this de Broglie hypothesis, it was given in I think 1927, de Broglie, है ना. So based on this de Broglie hypothesis, considering that electron behave like a wave, two experiments were performed. One is Davison and Germer. You might have studied these experiment. Modern physics में पढ़े क्या? Just name तो सुनो, कुछ पढ़ा सुना है. Davison and Germer experiment, and another is G.P. Thomson experiment. Okay. इन एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया कि दे टुक इलेक्ट्रॉन बीम. इलेक्ट्रॉन बीम मतलब इलेक्ट्रॉन बीम कैसे आप जनरेट कर सकते हैं? यू टेक ए टंगस्टन, हीट इट, टंगस्टन फिलामेंट, जैसे बल्ब के अंदर होता है, पुराने बल्ब जो होते हैं उसके अंदर टंगस्टन फिलामेंट होता है. यू क्रिएट ए वैक्यूम एंड हीट द टंगस्टन, एंड वंस इट इज हीटेड इलेक्ट्रॉन इमिटेड, है ना. इलेक्ट्रॉन जब इमिट होंगे ड्यू टू हीटिंग, एंड दोज इलेक्ट्रॉन इमिटेड, नाउ यू पुट पॉजिटिव पोटेंशियल हियर विद रेस्पेक्ट टू टंगस्टन फिलामेंट. तो जब ये पॉजिटिव पोटेंशियल होगा, बीच में वैक्यूम है, इलेक्ट्रॉन इमिटेड विल बी accelerated towards the potential V, and once they accelerated, they will move inside this tube, and when they move, now electron is free and moving. This is what we assume, that electron is moving in form of wave. So they took the electron beam and bombarded this electron beam on निकिल टारगेट. निकिल टारगेट के ऊपर उन्होंने इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्डमेंट किया, एंड व्हेन बीम बम्बार्डेड ऑन निकिल टारगेट, इट इज सपोज कि आफ्टर हिटिंग द निकिल टारगेट इलेक्ट्रॉन विल गेट स्कैटर्ड. जब इलेक्ट्रॉन गेट स्कैटर्ड, दे विल स्कैटर इन ऑल डायरेक्शन. सो दे ऑब्जर्व, दे रिकॉर्डेड दिस scattered back scattered electrons at different directions, and they found in certain direction electron were scattered in
maximum intensity. Electrons were scattered in maximum intensity, and there were certain other directions where electron coming were less. Number of electrons scattered in those directions were less, but in one particular direction they found electrons scattered in maximum intensity. Okay. So, to explain this, you have to see X-ray diffraction from the crystal. अगर आप थोड़ा X-ray diffraction from the crystal पढ़ेंगे, then we see that X-rays, again electromagnetic radiation, get scattered by atoms of the crystalline material, and when we make X-ray fall on the solid, scattered X-rays, reflected X-rays, again they give a beautiful pattern where we find that X-ray gets scattered in certain directions only, not in all directions. When you allow X-ray to fall on metallic target, metallic crystal, okay, then backscattered X-rays get scattered in certain direction only. जो स्कैटर होके वापस आएंगी वो किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, एंड इन सर्टेन अदर डायरेक्शन देयर विल बी लेस इंटेंसिटी. एंड दिस वी कैन एक्सप्लेन. इसके लिए एक ब्रैग्स लॉ है, ब्रैग्स लॉ एक्सप्लेन करता है इसको, वेयर वी यूज द रिलेशन 2d sin theta equal to n lambda. So behavior observed in this experiment was identical to X-ray diffraction by the crystal. जैसे एक्सरे डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल हैं, सिमिलरली इलेक्ट्रॉन गेट डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द सेम निकल क्रिस्टल, एंड इफ वी कंसीडर इलेक्ट्रॉन वेवलेंथ दिस मच, देन वी गेट द सेम रिजल्ट एक्सप्लेन्ड. जो एक्सप्लेनेशन एक्सरे डिफ्रैक्शन फ्रॉम द क्रिस्टल शो करता है, वही एक्सप्लेनेशन, वही थ्योरी इलेक्ट्रॉन डिफ्रैक्शन फ्रॉम द मेटल को एक्सप्लेन कर देगी, जब हम एज्यूम करेंगे एज इफ इलेक्ट्रॉन इज हैविंग दिस वेवलेंथ. सो दिस रिजल्ट प्रूव्स दैट इलेक्ट्रॉन बिहेविंग लाइक ए वेव. हम बम्बार्डमेंट तो इलेक्ट्रॉन का कर रहे हैं टारगेट के ऊपर, बट जो रिजल्ट मिल रहा है इट इज आइडेंटिकल टू स्कैटरिंग ऑफ एक्सरे बाय द क्रिस्टल. सो scattering of X-ray by the crystal, because X-ray we know it is waves. X-ray तो wave है, electromagnetic radiation. So जो explanation हम X-ray diffraction के लिए use कर रहे हैं, वही explanation हम electron beam diffraction के लिए use कर सकते हैं, and it tally exactly if we consider that as if electron beam wavelength is this much, and this proves कि electron behaving like a wave. Okay, so इन दोनों एक्सपेरिमेंट में यही ऑब्जर्वेशन है, दैट वी बम्बार्ड द क्रिस्टल विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन बीम, एंड रिजल्ट्स फाउंड दे वर आइडेंटिकल टू एक्सरे डिफ्रैक्शन फ्रॉम द क्रिस्टल, एंड इट प्रूव्ड, दीज रिजल्ट्स प्रूव्ड कि व्हाट डी ब्रॉगली प्रपोज्ड इज करेक्ट, मतलब ऐसा हो सकता है. ओके, सो वंस वी consider that electron behave like a wave, then we have to consider their motion in form of wave. Now there are few more aspects that when we take a wave, there are certain wave properties, wave parameter, है ना. वेव प्रॉपर्टीज क्या है? वेव प्रॉपर्टीज और वेव पैरामीटर्स में क्या क्या पैरामीटर आप डिफाइन करते हैं वेव्स के लिए? यू डिफाइन वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, इंटेंसिटी, फेज, एनर्जी, है ना, और क्या हो सकता है? वेव नंबर हो सकता है, इनवर्स ऑफ वेवलेंथ, है ना, और क्या है? वेलोसिटी, एंड इफ यू से पार्टिकल प्रॉपर्टीज, पार्टिकल पैरामीटर्स,
यू से वेलोसिटी, अगर कोई पार्टिकल मूव कर रहा है तो आप उसके साथ वेलोसिटी एसोसिएट करेंगे. यू एसोसिएट मास, ओके, यू एसोसिएट मोमेंटम and you associate energy, right? Yes. Yeah. Now if you see the spectrum, our electromagnetic spectrum, then you will find so if you see here lambda, है ना, these are you call radio waves. Radio waves very long wavelength, few kilometers, okay. Then you see here somewhere IR, then you find visible, then you find UV, then you find somewhere X-rays, then you have gamma rays, okay. Now this wave, when the wavelength is very large, then energy is spread over longer distance, over large region, है ना. When the wavelength is large, energy is spread in space over large region, okay. And in that case, wave property is prominent. Okay. And when the wavelength is small, energy associated is concentrated in short region, थोड़े से region में वो concentrated होगा, and in that case particle property is more prominent. For short wavelength, अगर wavelength बहुत small है, then your short wavelength particle nature is prominent. और आपने देखा होगा कि गामा रेज को कई बार हम गामा पार्टिकल भी बोल देते हैं. गामा रेज जो है दे बिहेव मोर और लेस लाइक पार्टिकल्स, ओके. एंड हियर इज द रीजन, ये वाला जो है, वेयर योर वेवलेंथ इज इन बिटवीन एंड यू हैव ड्यूल नेचर. यूवी विजिबल रीजन में आपका रेडिएशन, दिस रेडिएशन शोज ड्यूल नेचर, ओके. एंड हियर यू विल सी लैम्डा इक्वल टू h अपॉन mv, okay. Lambda is h upon mv for electron in say, I think it is electron with velocity 10 to the power 6 मीटर पर सेकेंड. ये हमने इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी लिया है इक्वलेंट टू फर्मी वेलोसिटी इनसाइड द सॉलिड. सॉलिड के अंदर जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है, हमने फर्मी वेलोसिटी टर्म डिस्कस किया है. सो इलेक्ट्रॉन वेलोसिटी इनसाइड द सॉलिड इज समथिंग 10 टू द पावर 6 मीटर पर सेकेंड, इस ऑर्डर का होता है, ओके. एंड फॉर दिस केस यू विल फाइंड लैम्डा कितना हो जाएगा, 6.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 डिवाइड बाई 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 इंटू 10 टू द पावर 6, ओके. ये कितना आएगा लगभग,
1-2 एंगस्ट्रॉम के बीच आ जाएगा, कितना है, हाउ मच, आप कैलकुलेट कीजिए। एंड फॉर 1 kg बॉल एट 1 मीटर पर सेकेंड, है ना, 1 kg बॉल, ये कितना है वैल्यू, ये 37 हो गया ना, तो लगभग 1-2 के करीब आएगा ये, 1-2 एंगस्ट्रॉम्स, जैसे वहाँ निकाला है 1.66, कितना है, हैं? हाँ एंगस्ट्रॉम्स, लेट अस राइट इन अबाउट 7 few एंगस्ट्रॉम्स, है ना, few, and if you consider it for 1 kg ball moving with speed 1 meter per second, this is our classical objects जो डेली यूज में हम देखते हैं, लार्ज वेट है और अप्रिशिएबल उनका वेलोसिटी है ना, मास भी है ना, सो क्लासिकल पार्टिकल यू कैन से, लैम्डा विल बी 6.625 into 10 to the power minus 34 upon 1 kg into 1 मीटर, सो यही हो गया मीटर, इतने मीटर करीब हो गया, एंड दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। सो ये वेवलेंथ बहुत स्मॉल है, एंड दिस वेवलेंथ इज सो स्मॉल दैट वी कैन नॉट सी द एक्सपेरिमेंट्स, जो एक उनके इफेक्ट्स जो है क्लियरली नजर नहीं आएंगे। बट इफ द वेवलेंथ इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोन और एंगस्ट्रॉम्स, then we can see the effects, those which we are studying, observing, because 10 to the power minus 10 एंगस्ट्रॉम ऑर्डर नैनोमीटर रेंज ऐसा है जिसको हम आज की डेट में इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से एक्सप्लोर कर सकते हैं, देख सकते हैं, ओके। और बेस्ड ऑन दिस, ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है, इट मीन्स इलेक्ट्रॉन बीम बिहेव लाइक ए वेव ऑफ वेवलेंथ 1 एंगस्ट्रॉम और लेस। अगर 54 वोल्ट की जगह एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल ज़्यादा हो जाएगा, देन वेवलेंथ और कम हो जाएगी। अभी जो कैलकुलेट किया था 1.66 एंगस्ट्रॉम, दैट वाज फॉर 54 वोल्ट। अगर उसकी वोल्टेज और बढ़ा देते हैं, देन वेवलेंथ और कम हो जाएगी, ओके। एंड व्हेन वी ट्राई टू रिजॉल्व द ऑब्जेक्ट्स यूजिंग माइक्रोस्कोप्स, जब हम माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं तो माइक्रोस्कोप का रेजोल्यूशन लिमिट कैसे डिफाइन होता है, हाउ मच स्मॉल वी कैन सी व्हेन वी ऑब्जर्व स्मॉल ऑब्जेक्ट्स विद द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप, व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर, क्या लिमिट करता है कि हम कितना छोटा देख सकते हैं, लैम्डा, द वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन। तो नॉर्मली ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप में वी यूज विजिबल लाइट, एंड विजिबल लाइट इज समथिंग 1000 एंगस्ट्रॉम्स, 6000 एंगस्ट्रॉम्स, 7000 एंगस्ट्रॉम्स। सो हम माइक्रोन ऑर्डर की चीज़ें देख सकते हैं, वी कैन नॉट सी एंगस्ट्रॉम ऑर्डर। सो इफ वी वांट टू सी एंगस्ट्रॉम ऑर्डर डिस्टेंसेस, अगर हमें नैनोमीटर ऑर्डर का डिस्टेंस देखना है, एंगस्ट्रॉम ऑर्डर का डिस्टेंस देखना है, एटम टू एटम डिस्टेंस देखना है, या सॉलिड के अंदर क्रिस्टल प्लेन का स्पेसिंग देखना है, तो हम वी विल हैव टू यूज some wavelength equivalent to angstrom order, and that's what we do with the help of electron beam in electron microscope. तो जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप है, इट इज आइडेंटिकल टू योर ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप, जो आपने माइक्रोस्कोपी जो नॉर्मली लैब्स में यूज़ करते हैं, मेडिकल जो टेस्टिंग लैब्स होती हैं उन्होंने भी माइक्रोस्कोप रखे होते हैं ना, बैक्टीरिया वगैरह या कुछ ब्लड सेल वगैरह देखते हैं, बट वो दोज ऑब्जेक्ट्स आर ऑफ माइक्रोन साइज। But if we have to resolve angstrom order dimension, solid के अंदर atomic distances देखना है, interatomic planes देखना है, then we cannot see that using optical microscope. So there we take the help of electron microscope, and electron microscope is based on this de Broglie hypothesis, where we consider electron beam. Electron beam को accelerate करेंगे with kilovolt potential. When we use kilovolt potential, 100 kV potential से जब यूज करेंगे तो that wavelength will be very very small. Electron beam wavelength will be very very small, and we can make a image of the object at that level. So mean to say कि if we have to consider motion of electron inside the solid, we cannot treat them like a
classical particle. We cannot use this Newtonian mechanics. We cannot use the formula F equal to ma. We cannot use that Newton law of motion. Newton law of motion नहीं लगेंगे वहाँ पे. Newton law of motion लगेंगे if we are in the classical range, where the matter behave mostly like particle, but electron is more or less it is behaving like waves. So to deal with the electron, to study the behavior of electron, we have to consider wave nature. We have to consider electron like a wave, है ना, as if electron moving like a wave. So when we consider wave, you have different type of waves. We have electromagnetic wave, we have waves in a string, we have wave in sea water, water waves. पानी में पत्थर फेंकेंगे तो सरफेस पे वेव्स निकलेंगी. वी हैव साउंड वेव्स, राइट, डिफरेंट टाइप ऑफ वेव्स है. सो व्हेन यू से वेव, देन देयर इज समथिंग वेरिंग पीरियडिकली, है ना. अगर आप वेव की बात करते हैं तो इसका मतलब वंस देयर इज सम वेव, देयर इज समथिंग एसोसिएटेड विद द वेव विच इज वेरिंग पीरियडिकली, है ना. होगा कि नहीं होगा? So what is that in water wave? Water wave is ripple, but इसको और थोड़ा रिपल तो एक बड़ी वो एक लेमैन को बताना है कि आपने पानी की वेव्स है उसमें क्या चीज़ है जो पीरियडिकली वेरी कर रहा है. इट इज़ डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाटर पार्टिकल्स. तो बेसिकली पार्टिकल ऐसे ऐसे हो रहे हैं. किसी भी जगह पानी जो है ना वो ऐसे ऐसे ही हो रहा है, बट वो इस तरह से हो रहा है ऐसे ऐसे कि हमें वो चलते हुए दिखाई देता है. क्योंकि जिस समय ये इधर हो रहा है तो इधर मतलब एक लय के साथ है. पूरा वाटर सरफेस जो है एक लय के साथ ऑसिलेट कर रहा है. बट इंडिविजुअली अगर देखेंगे तो ऐसे ऐसे ही है. हर पार्टिकल ऐसे ऐसे ही मूव हो रहा है, बट वो इस तरह से है कि हमें ऐसे लगता है कि मूव कर रहा है. ओके. स्ट्रिंग में भी वैसे ही है. स्ट्रिंग जो है, अच्छा, साउंड में व्हेन वी से साउंड वेव्स है तो हियर आल्सो समथिंग वेरिंग पीरियडिकली. अब ये थोड़ा लॉन्गिट्यूडनल डिफरेंट टाइप की वेव है. सो हियर इट इज़ द रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशन. जो अब ये थोड़ा साउंड वेव इस तरह का है कि इसको देखना मुश्किल है, और फिजिक्स के टर्म में बात करें तो कुछ मान के अजम्पशन प्रेशर कुछ होता है, उसको लेके मतलब आम आदमी को आप नहीं समझा पाएंगे कि साउंड वेव क्या है. बट हम तो एटलीस्ट समझ ही जाएंगे, फिजिक्स पढ़ी है, जानते हैं कि मीडियम में एयर पार्टिकल है और एयर पार्टिकल का कुछ अपना डेंसिटी है. तो ये जो रेयरफैक्शन एंड कंप्रेशंस है ना, तो ये पीरियडिकली वेरी कर रहा है. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ा है हमने, उसमें क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर वेरिंग periodically. Okay, so you take any wave, in that any wave you talk of, you must have something varying periodically. Okay, तो जब हम मैटर वेव कह रहे हैं, if we are considering particle to be wave like, the wave associated with the particle is matter wave. So with the matter wave also there should be something associated which varying periodically. So what is that? ये क्या होना चाहिए, क्या होगा ये, है ना. तो पीरियडिकल, ये जो आपकी मैटर वेव है ये थोड़ा कन्वेंशनल वेव से डिफरेंट है. ये लोकलाइज्ड वेव है, ये वहीं एग्जिस्ट करेगी जहाँ पे आपका पार्टिकल है. वेराज जो दूसरी वेव्स हैं वो आपका थ्रूआउट मीडियम, थ्रूआउट द स्पेस एग्जिस्ट कर सकती हैं. कि जैसे सी वेव है तो आपका पूरा हो सकता है कि इस शोर से लेकर उस शोर तक, पूरे शोर तक दिखाई दे. सिमिलरली साउंड वेव है, अगर साउंड वेव यहाँ से लेकर अगर आप किलोमीटर दूर साउंड जा रहा है तो थ्रूआउट द रीजन यू विल हैव कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शंस. बट यहाँ पे थोड़ा बिहेवियर डिफरेंट है. ओके, इट इज ओनली इन द विसिनिटी ऑफ द पार्टिकल.
पार्टिकल मूव कर रहा है वेव की फॉर्म में, बट वेव वहीं एग्जिस्ट करती है जहां पे पार्टिकल है. इट इज अ लोकलाइज्ड वेव एंड इट इज काइंड ऑफ पायलट वेव और गाइड वेव विच इज गाइडिंग द पार्टिकल इन टू मूव इन फॉर्म ऑफ वेव. तो ये यहां पे जो वेव होगा ये कुछ इस तरह से होगा. ठीक है, थोड़ी देर के बाद आपको ये यहां दिखाई देगा कुछ. ओके, थोड़ी देर के बाद आपको ये यहां दिखाई देगी. और फिर आपको ये यहां पे दिखाई दे, है ना, आपको पूरे स्पेस में दिखाई नहीं देगी. लोकलाइज्ड वेव है, बट ये वहां पे होगी जहां पे पार्टिकल होगा. पार्टिकल पहले यहां पे था, सो इट इज मूविंग लाइक दिस. सो वेव इज एग्जिस्टिंग हियर, नथिंग एल्स. व्हेन पार्टिकल हैज अराइव्ड हियर, सो इट इज हियर. सो इट इज काइंड ऑफ पायलट वेव. मतलब जो कि पायलट, आपके पायलट मतलब गाइड करना. पायलट का मतलब गाइड करना होता है. जैसे पायलट आपका एयरक्राफ्ट को गाइड करता है ना, तो वैसे पायलट का मतलब गाइडिंग है, गाइड. सो इट्स अ पायलट वेव, गाइडिंग वेव विच गाइड द पार्टिकल टू मूव. बट तो ये वेव को मूव कर, वेव जो ये जो वेव है ये पार्टिकल को गाइड कर रही है कि आपने इस डायरेक्शन में चलना है. बट कैसे चलना है, वो एक फॉर्म ऑफ वेव की फॉर्म में चलना है. सो हियर इज ऑल्सो समथिंग वेरिंग. एक्चुअली क्या है, पार्टिकल इस तरह से गया है, पार्टिकल जो है पार्टिकल. सो यहाँ पे हम वी विल डिफाइन समथिंग वेरिंग पीरियडिकली. पार्टिकल तो एक जगह होगा, यहाँ हर जगह नहीं. पार्टिकल तो किसी समय यहाँ होगा या फिर यहाँ होगा, बट वी सी समथिंग लाइक ए वेव. सो व्हाट इज वेरिंग पीरियडिकली हियर, वी इंट्रोड्यूस सम आर्बिट्रेरी एक इमेजिनरी फंक्शन दैट वी कॉल हियर वेव फंक्शन. ओके, सो क्वांटम मैकेनिक्स में हम एक टर्म एसोसिएट करेंगे, वेव फंक्शन. वेव फंक्शन इज सम फंक्शन वेरिंग पीरियडिकली एंड विच इज गाइडिंग द वेव. क्योंकि यहाँ पे फिजिकली देखें तो कुछ भी नहीं है. पार्टिकल आपको एक मूव करता हुआ दिखाई देगा इन फॉर्म ऑफ वेव, बट अगर आप इसको एनालॉजी ड्रॉ करके देखें तो ऐसा कुछ कंटिन्यूस आपको नहीं मिलेगा. बट पार्टिकल मूवमेंट जो है वेव फॉर्म में ही होगा. इसका मतलब कोई ना कोई चीज़ है जो, अब अगर आप इस पूरे रीजन में देखें कि ये इस तरह से ये है ना, कुछ तो ये पीरियडिकली वेरी हुआ है. ये पहले यहाँ था, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ हुआ, फिर यहाँ. तो ये क्या चीज़ है, इसको हम एक वेव फंक्शन की टर्म में एज्यूम करते हैं, वेव फंक्शन. ओके, और क्योंकि ये वेव की फॉर्म में है तो आपका वेव फंक्शन भी यहाँ पे एक, जैसे आप नॉर्मली आपने डिफाइन किया है, वेव इक्वेशन लिखते हैं आप. वेव इक्वेशन लिखते हैं ए साइन 2 पाई. एक फंडामेंटल जो एक वेव का फार्मूला आप लिखते हैं वो है एक्स अपॉन लेमडा माइनस टी अपॉन टी, है ना. बेसिक एक फार्मूला है वेव का, है ना. सो इसमें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वो चीज़ है जो पीरियडिक, जैसे डिस्प्लेसमेंट हो सकता है ना, डिस्प्ले वाई इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट कहते हैं हम. तो यहाँ पे हम इसको वाई की जगह साई लेंगे, है ना. उसमें ये वाई होता है, यहाँ पे हम इसको साई लेंगे. ओके, सो दिस वी कैन राइट ए साइन 2 पाई बाई लेमडा एक्स माइनस 2 पाई 1 बाई टी एंड दिस. So this we can write a sin 2 pi by lambda we write k x minus 2 pi nu into this 1 by t equal to nu frequency. Okay, so that we write a sin k x minus omega t. So this is what we have written for E जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म में पढ़ा है, E equal to E naught साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी. तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में हमने इसको इस तरह से पढ़ा है, बट है वही है, वेव ही है जो आपने +2 या 11th से शुरू किया है वेव के लिए.
तो ये वहीं से है चीज़ वही। सो इसलिए नाउ वी विल एज्यूम दिस साई जो है इसी तरह से डिस्क्राइब होगा, वेव की फॉर्म में होगा। तो साई इज ए फंक्शन विच वेरी पीरियोडिकली, ओके। So wave function is, say, here function which varying periodically, and we associate a wave function, and if we take psi square represents probability of finding particle per unit वॉल्यूम। साई इटसेल्फ कोई साई का इटसेल्फ कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, बट इफ वी टेक साई स्क्वायर देन साई स्क्वायर रिप्रेजेंट्स प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल पर यूनिट वॉल्यूम एट दैट पॉइंट, है ना। कहाँ पे हम पार्टिकल को डिफाइन, साई कहाँ डिफाइन किया है? साई क्या आपने यहाँ डिफाइन किया है, या साई यहाँ डिफाइन है, या यहाँ डिफाइन है? उस पॉइंट पर साई स्क्वायर gives a probability of finding particle per unit volume. So psi square into dV, what it will give? It will give probability of finding particle over volume dV, okay. And if we integrate from minus infinity to infinity, we should get 1, because particle is definitely somewhere, कहीं तो होगा। तो इसलिए साई, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द वेव फंक्शन। जो हम वेव फंक्शन डिफाइन करेंगे, इट शुड बी पीरियोडिकली वेरिंग फंक्शन, बिकॉज इट डिस्क्राइब्स वेव, तो ये पीरियोडिक फंक्शन होना चाहिए। एंड सेकेंडली इट मस्ट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन। तो अगर डिफाइंड जो हमने साई एज्यूम किया है, वेव फंक्शन एज्यूम किया है, इफ इट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, देन वी कॉल, देन psi is normalized. Psi is normalized. और अगर psi is such that it is not satisfying this condition, then we have to normalize it. अगर psi कुछ ऐसा है जो कि इसको नहीं, तो यहीं से वो normalize हो जाएगा, ठीक है। Now we have psi equal to a sin kx minus omega t. Now we have E equal to h nu, okay. H nu equal to okay, omega equal to 2 pi nu equal to 2 pi by 2 pi 2 pi by h and h nu, okay. So it is 1 upon h cross and E. h cross, h को h cross is h upon 2 pi, है ना। ये एक डिफरेंट नोटेशन है। h cross प्लैंक कांस्टेंट की जगह h cross भी हम यूज करेंगे, वेयर h cross is h upon 2 pi, okay. And here we have
if we have a particle moving with velocity v, then E equal to half mv square. And if the particle is moving with velocity v, and if in the neighborhood there is some potential existing, then we have E plus v equal to half mv square. मतलब total energy जो है, energy is equal to kinetic energy. But if particle is in the region where there is some potential energy also, then total energy is E kinetic energy, total energy is this, like okay, इस तरह से हो जाएगा E plus v equal to half mv square. So here we write twice E plus v equal to mv square. So twice m E plus v equal to m square v square, and that is p square, twice m E plus v. Yes. So if we are calculating total energy, we have equated the total energy equal to the only kinetic energy. एक मिनट, E plus v, एक मिनट लग जाएगा अभी पता. लेट अस सी. नाउ 2m E plus v equal to p square, and p equal to h cross. Okay, so p equal to twice m E plus v under root, or h cross by lambda. P equal to h cross by lambda is equal to twice m E plus v. Okay, so नहीं, यहाँ h क्रॉस नहीं है, इस रिलेशन में h क्रॉस नहीं है ना अभी तक. ओके, सो h अपॉन ट्वाइस 2 पाई एंड 2 पाई बाई लेमडा इक्वल टू 2m E plus v. So here h cross into k equal to, now h cross और ये k हो गया, is 2m E plus v. So k equal to, यहाँ से मिलेगा k equal to twice m E plus v upon h cross. ये यहाँ k and this is your omega. So this is our equation showing periodic variation of the wave, है ना. Now for the particle, now because we are using the same function for the material particle which is moving in form of wave. Okay. So here what is k? K we have redefined here this way, in term of material particle, material properties. क्योंकि ये रेडिएशन, ये तो एक रिलेशन है, ये जो वेव इक्वेशन है ये वेव के लिए है, बट नाउ वी आर डिफाइनिंग दिस इक्वेशन फॉर द पार्टिकल. सो नाउ वी विल डिफाइन दीज, इंट्रोड्यूस मटेरियल पैरामीटर्स. अभी तक जो यहाँ पे के और ओमेगा था वो वेव के लिए थे. ओमेगा 2 पाई न्यू, न्यू इज द पैरामीटर फॉर द वेव, and k is 2 pi by lambda, again the wave property. But now we are using this function to define matter wave, तो हमें यहाँ पर material parameter लाने पड़ेंगे. So k will be written this way in term of material parameter m, and omega we will write here in term of material
parameter energy. Okay. So, in that case we will have now psi equal to A sin k. K will be twice m e plus v upon h cross minus e by h cross. Okay. So, this is what our wave function for the matter wave. एक्सप्रेशन डिफाइनिंग मैटर वेव. मैटर वेव के लिए हमारा जो वेव फंक्शन होगा, वेव फंक्शन मतलब समथिंग जो पीरियोडिक वेरिएशन आ रहा है इन फॉर्म ऑफ मटेरियल प्रॉपर्टीज, ये आएगा. हाँ, क्या डाउट है? अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, यस यस, आएगा आएगा, बिल्कुल आएगा. कोई बात नहीं, इसको लेट मी एक्सप्लोर. है तो यहीं पे ऐसे ही है, बट हाउ टू इंटरप्रेट वी विल डिस्कस. ओके, अभी हम थोड़ा सा जो आगे नहीं, काइनेटिक नहीं, ई यहाँ के ई आएगा फिर, नहीं के ई प्लस वी. एक हमने लिखा था के ई प्लस के ई वी शुड बी हाफ एम बी स्क्वायर. हाँ, ये के ई है, ये काइनेटिक नहीं. नहीं, अभी रहने दो, अभी नहीं काटेंगे, अभी रहने दो बेटे. लेट मी चेक. हाँ, अब अभी थोड़ा आगे बढ़ने से पहले हम एक और टर्म्स यूज़ करेंगे, आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज़. जैसे आपका ये फंक्शन हो गया, वेव फंक्शन हो गया ना, फंक्शन है वेव फंक्शन. वी हैव डिफाइंड वेव फंक्शन. वेव फंक्शन इज डिफाइनिंग समथिंग एसोसिएटेड विद द मैटर वेव विच इज़ वेरिंग पीरियोडिकली. तो वेव फंक्शन हो गया. नाउ अब इस you might have discussed different mathematical function. So, and you will see like d by dx of ex, ekx, d by dx of ekx क्या हो जाएगा? kex. Okay, या if we say हाँ, yes. So eigen function we define a. अब यहाँ पे दिस इज ऑपरेटर. ओके, दिस इज फंक्शन. तो ऑपरेटर क्या है हमारा? डिफरेंशियल ऑपरेटर है. वी आर डिफरेंशिएटिंग. व्हाट वी आर डिफरेंशिएटिंग? वी आर डिफरेंशिएटिंग ई के एक्स. ई के एक्स को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, और डिफरेंशिएट करना एक ऑपरेशन है. सो दिस इज ऑपरेटर. सो व्हेन वी ऑपरेट ए फंक्शन बाई सम ऑपरेटर, है ना, किसी फंक्शन को किसी ऑपरेटर से ऑपरेट करें, देन वी गेट सेम फंक्शन मल्टीप्लाइड बाई सम कांस्टेंट. अगर ऐसी सिचुएशन आती है, ये हमेशा हर एक्सप्रेशन में नहीं होगा, या हर ऑपरेशन में भी नहीं होगा. ओके, बट समवेयर यू विल फाइंड दिस सिचुएशन दैट इफ यू आर operating some function with the help of some operator, and you are getting same function with some constant scaled, or you can say function is scaled by some parameter, some value.
then this function is called eigen function, and this is the eigen function of this operator, and this is called eigen value. This is called eigen value. ये जो यहाँ पे जो एक स्केलिंग फैक्टर आएगा. सो सेम थिंग वी विल यूज इन द क्वांटम मैकेनिक्स. क्वांटम मैकेनिक्स में हमारे पास वी हैव वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द पार्टिकल. ओके, एंड अब इस वेव फंक्शन से पार्टिकल प्रॉपर्टीज कैसे निकलेंगी. अगर हम इस वेव फंक्शन से, क्योंकि दिस इज द वेव फंक्शन एसोसिएटेड विद द मूविंग पार्टिकल. अब मूविंग पार्टिकल की एनर्जी निकालनी है, मूविंग पार्टिकल का मोमेंटम निकालना है, तो कैसे निकलेगा? वो इस फंक्शन से निकलेगा. इट मीन्स वी हैव टू ऑपरेट दिस फंक्शन विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेटर. ओके, विद द हेल्प ऑफ सम ऑपरेटर, एंड देन वी विल गेट सम. ओके, तो वो जो ऑपरेटर होगा वो दैट ऑपरेटर में बी एनर्जी ऑपरेटर, दैट ऑपरेटर में बी मोमेंटम ऑपरेटर. तो यहां पे जो वेव मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स में एवरी पैरामीटर इज डिफाइंड इन टर्म ऑफ ऑपरेटर्स. टू फाइंड एनर्जी देयर इज एनर्जी ऑपरेटर, एंड एनर्जी ऑपरेटर ऑपरेट ओवर दिस वेव फंक्शन, यू विल गेट एनर्जी. तो एनर्जी ऑपरेटर से वेव फंक्शन को जब ऑपरेट करेंगे तो यहां आपको ये एनर्जी मिलेगी. ये जो आइगन वैल्यू है ये आपकी एनर्जी होगी. सिमिलरली यू हैव मोमेंटम ऑपरेटर. मोमेंटम ऑपरेटर से आप इसको जब ऑपरेट करेंगे वेव फंक्शन को, यू विल गेट मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय वेव फंक्शन. तो दिस इज हाउ वी विल गेट डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ द मटेरियल पार्टिकल. बिकॉज मटेरियल पार्टिकल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हमारी एक क्लासिकल प्रॉपर्टी की तरह कि उसका मास कितना है, उसका मोमेंटम कितना है, उसकी एनर्जी कितनी है. बट डील हम उसको वेव की फॉर्म में कर रहे हैं. तो जब डील हम वेव की फॉर्म में कर रहे हैं देन देयर इज सम पीरियोडिक फंक्शन. अब इस पीरियोडिक फंक्शन से मटेरियल पैरामीटर्स, मटेरियल प्रॉपर्टीज कैसे अटेन करेंगे? दैट विद द हेल्प ऑफ दीज ऑपरेटर्स. ओके, सो सिमिलरली इफ यू सी sin ax, if you have function sin ax, then you can say sin ax can be eigen function for d2 by dx square operator. d2 by dx square operator के लिए sin ax जो है आपका आइगन फंक्शन होगा, है ना. एंड इसकी वैल्यू जो होगी वो आपको मिलेगी माइनस ए स्क्वायर साइन के एक्स, है ना. तो ये जो है ये जो वैल्यू आया ये आइगन वैल्यू है. दिस इज द आइगन वैल्यू ऑफ दिस ऑपरेटर एंड दिस इज द आइगन फंक्शन. अब ये डी बाई डी एक्स साइन ए एक्स, अब ये इस फॉर्मेट को फिट नहीं करेगा, ये इस फॉर्मेट में फिट नहीं होगा, है ना. ये डी बाई डी एक्स ऑपरेटर के लिए आइगन फंक्शन नहीं है. तो मतलब ये है कि सर्टेन सिचुएशंस ही हैं कि वेयर सम फंक्शन विल बी आइगन फंक्शन फॉर सम ऑपरेटर, एंड इट इज नॉट ऑलवेज. ये ऐसा नहीं कि हर इक्वेशन में होगा ना, ये कहीं डिपेंडिंग अपॉन की फंक्शन क्या है और आपका ऑपरेटर क्या है, वहीं पे ये रिलेशन होल्ड करेगा. So we will continue further and we will derive the wave equation. अब हम wave equation derive करेंगे जो कि हम आगे यूज़ करेंगे in quantum mechanics to study the, okay, यहीं से इसी को लेके. Okay, so we will continue next time.